سب سے پہلے اہم خبر، ملکی معیشت وینٹیلیٹر پر، اقتصادی سروے نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ حکومت رواں مالی سال کے معاشی اہداف حاصل نہ کر سکی۔ اقتصادی سروے کے مطابق معاشی ترقی کی شرح 0.29% رہی۔ حکومت رواں مالی سال کے معاشی اہداف حاصل نہ کر سکی۔ وفاقی وزیر خزانہ نے اقتصادی سروے رپورٹ پیش کر دی۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں رواں مالی سال معاشی ترقی کی شرح 0.29% رہی، مہنگائی کی شرح 29.2% رہی۔ جب ڈیویلیوشن ہوتی ہے وہ انفلیشن ٹریگر کرتی ہے، جب انفلیشن ٹریگر ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کو اپنا پالیسی ریٹ بڑھانا پڑتا ہے، اور یہ جو پنڈت تھیری دیتے ہیں نا کہ ڈیویلیوشن سے ایکسپورٹس بڑھے گی، وہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں۔ وزیر خزانہ بولے IMF پروگرام کے لیے بھاری سیاسی قیمت ادا کی۔ ہماری کریڈیبلٹی اروڈ ہو چکی تھی، آپ کو کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وی آر ریڈی کہ جب ہمارا IMF کا اللہ کرے کہ 9/3 جلدی ہو تو اس کے بعد وہ ڈیو ہے کہ وہ آٹو آپ کو پیمنٹ ہوگی۔ اسحاق ڈار نے میڈیا بریفنگ میں سیلاب سے ملکی معیشت کو پہنچنے والے نقصانات کی تفصیل بھی بتائی۔ فلڈز کی جو پاکستان نے ایک بہت بڑی ایک کیٹاسٹرفی دیکھی، ایک بہت بڑا المیہ دیکھا کہ انپریسیڈنٹڈ فلڈز آئے، اور اس کے لیے جو آپ نے نمبرز بھی آپ کو پتہ ہے کہ قریباً ہمارے جو فزیکل لاسز اینڈ اکنامک لاسز وہ ملا کے قریباً $30 بلین سے کراس کر گیا۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا درآمدات میں نمایاں کمی سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ نیچے آیا۔ ارشاد انصاری، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ آگے بڑھیں گے، جہانگیر ترین نے استحکام پاکستان پارٹی کے قیام کا اعلان کر دیا۔ نیوز کانفرنس میں کہا کہ قوم کو امید دلانے کے لیے نئی جماعت بنائی ہے۔ ہم آج ایک نئی سیاسی پارٹی استحکام پاکستان پارٹی کی بنیاد رکھنے آئے۔ لاہور میں جہانگیر ترین نے میڈیا سے گفتگو میں کہا گزشتہ چند سال کے واقعات نے معیشت اور سیاست کو شدید نقصان پہنچایا۔ پاکستان کو آج ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو سیاسی اور سماجی تقسیم کو ختم کرے، اتحاد اور رواداری کو بڑھائے۔ جہانگیر ترین نے 9 مئی کے واقعات اور تحریک انصاف کے حوالے سے بھی اظہار خیال کیا۔ 9 مئی کے واقعات نے پاکستانی سیاست کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ میں اپنے دل کی گہرائی سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، دل کی گہرائی سے، کہ اگر ہم نے 9 مئی کے مطلوبہ ساتوں اور شر پسندوں کو انجام تک نہ پہنچایا تو پھر سیاسی مخالفین کے گھروں پر حملہ بھی قابل قبول سمجھا جائے۔ کوئی بھی معاشرہ اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس موقع پر عبدالعلیم خان نے کہا موجودہ صورتحال پر تمام پاکستانی پریشان ہیں۔ 9 مئی کے بعد لوگ فکر مند تھے، یہ انتشار پاکستان کے لیے بری خبر ہے۔ رضوان آصف، ایکسپریس نیوز، لاہور۔ جبری طلاقوں سے اکٹھے کیے گئے افراد سے نئی پارٹی بنانا مسائل کا حل نہیں، صاف اور شفاف الیکشن کرائے جائیں۔ تحریک انصاف کا جہانگیر ترین کی پارٹی کے قیام پر رد عمل، کہا عوام کو اپنے نمائندے چننے کا موقع دیا جائے۔ مسلم لیگ نون کا نئی سیاسی جماعت کا خیر مقدم، جہانگیر ترین کے ساتھ انتخابی اتحاد کا اندیا بھی دے دیا۔ مومن خصوصی عطا تارڑ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، عام انتخابات میں کچھ حلقوں میں ہمارا مشترکہ امیدوار ہو سکتا ہے۔ اور جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہمارا آئیڈیل ورکنگ ریلیشن شپ ہے۔ ان کے جتنے ساتھ کے لوگ ہیں، امن چودھری ہماری کیبنٹ میں ایڈوائزر ہیں، ان کے جتنے باقی لوگ ہیں فیلڈ میں موجود ہیں، اجمل چیمہ فیصل آباد سے، نعمان لنگڑیال سائی وال سے، فیصل جبوان ہے جھنگ سے، یہ سارے وہ لوگ ہیں ساتھ بھی الائنڈ ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ ترین صاحب کے امیدوار کھڑے ہوں گے یا ہمارے امیدواروں کی ان سے کوئی آپس میں ایک جوائنٹ کینڈیڈیٹ آنے کا بھی بہت ساری جگہوں پہ یہ امکان ہے۔ تو ترین صاحب اور ہم ایک ساتھ چلیں گے، ہمارا ان سے ایک اچھا الحاق ہے۔ الیکشن الائنس کے حوالے سے پارٹی فیصلہ کرے گی، مگر ابھی تک جو صورتحال نظر آ رہی ہے بہت ساری جگہوں پہ ہم آپس میں ایک ہی ہوں گے۔ ویلکم بیک، اور اب بات کریں گے آئندہ مالی سال کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ پیٹرولیم پر لیوی مزید بڑھے گی، لگژری اشیاء اور مہنگی، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اور پینشن میں 20% اضافے کا امکان ہے۔ آئندہ مالی سال 2023-24 کے وفاقی بجٹ کا مسودہ تیار، GDP 7.7% اور 6,000 ارب سے زائد خسارہ متوقع۔ ملکی آمدن کا تخمینہ 9,200 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ FBR کے لیے ٹیکس محصولات اور نان ٹیکس آمدن کے لیے 2,800 ارب روپے کا ہدف ہے۔
जिस में से 55% से ज्यादा सूबों को मुंतकिल किए जाएंगे। वफाक तरक्याती मंसूबों पर 950 अरब रुपए खर्च करेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 200 अरब रुपए के मंसूबे शुरू होंगे। सूबे तरक्याती मंसूबों पर 1559 अरब रुपए खर्च करेंगे। दिफा के लिए 1800 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। FBR 1900 अरब इजाफी इकट्ठे करेगा। ज़राए के मुताबिक प्रॉपर्टी सेक्टर और कंपनियों के मुनाफे पर नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह बढ़ाने का इम्कान है। 18% सेल टैक्स और लग्जरी आइटम्स पर 25% सेल्स टैक्स लगाया जाएगा। 1000 सीसी से बड़ी इंपोर्टेड गाड़ियों पर ड्यूटी की शरह में इजाफे की तजवीज़ है। बजट में 700 अरब से ज्यादा के नए टैक्सेस आयद किए जाएंगे। नॉन फाइलर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर 30% से ज्यादा टैक्स लगाने का फैसला किया गया। दरामदी लग्जरी अशिया पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाएगा। प्रॉपर्टी का लेन देन करने वाले नॉन फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स दुगना करने का फैसला किया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में एडहॉक अलाउंस की मद में 30% तक इजाफे का इम्कान है। पे एंड पेंशन कमीशन ने तनख्वाहों में 30% और पेंशन में 20% इजाफे की तजवीज़ दी है। कमीशन की तजवीज़ के मुताबिक ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% और ग्रेड 17 और इससे ऊपर के अफसरों की तनख्वाहों में 20% इजाफा किया जाए। मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में 50% और पेंशनर्स के मेडिकल अलाउंस में इजाफे के साथ साथ पेंशन में भी 20% इजाफा किया जाए। EOBI एम्प्लॉयज़ की पेंशन में इजाफे और मजदूर की कम अज कम उजरत बढ़ाने की तजवीज़ शामिल है, जिसकी हतमी मंजूरी जुमे को वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना के खुसूसी इजलास में दी जाएगी। अरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। इक्तिसादी सर्वे में बताया गया है कि एक साल के दौरान गधों की तादाद में 1 लाख का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक गुज़िश्ता साल गधों की कुल तादाद 57 लाख थी, जो रवां माली साल बढ़कर 58 लाख हो गई है। ताहम ऊँटों, खच्चरों और घोड़ों की तादाद में कोई इजाफा नहीं हुआ। एक साल के दौरान मवेशियों की तादाद में 21 लाख का इजाफा हुआ, जिसके बाद तादाद 5 करोड़ 34 लाख से बढ़कर 5 करोड़ 55 लाख हो गई। भैंसों की तादाद में 13 लाख और भेड़ों की अफजाइश में 4 लाख का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नौजवानों, ख्वातीन और किसानों की तरक्की के इनकलाबी प्रोग्राम को बजट में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। बजट में नौजवानों को बिलासूद कर्ज देने के वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के लिए खती रकम मुख्तस की गई। पाकिस्तान इम्प्रूवमेंट बराए फ़ंड तालीम के कायम करने की मंजूरी दी गई। फ़ंड से ज़हीन लेकिन गरीब तलबा और तालिबात को वज़ाइफ दिए जाएंगे। नौजवानों को 1 लाख मुफ्त लैपटॉप की फराहमी के लिए रकम भी मुख्तस की गई। ख्वातीन को माली तौर पर बाइख्तियार बनाने के प्रोग्राम के लिए रकम रखी गई। ज़रूरी ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकिली वज़ीर-ए-आज़म के किसान पैकेज के दूसरे हिस्से के तौर पर की जाएगी। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, पाकिस्तान में महंगाई का 76 साल का रिकॉर्ड टूट गया। शहबाज शरीफ के आने से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फीकस आमदन $1766 से कम होकर $1568 हो गए। मुज़म्मिल असलम ने कहा कि इक्तिसादी सर्वे में हुकूमत ने अपनी नाअहली का एतराफ़ कर लिया। इसहाक डार आज की बात की बजाय पुरानी बातें करते रहे। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि पाकिस्तान में महंगाई का 76 साल का रिकॉर्ड टूट गया। डॉलर की रुपए को फिर झटका, 5 रुपए महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए बढ़कर 305 रुपए पर बंद हुआ। डॉलर का रुपए को फिर झटका, 5 रुपए महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए बढ़कर 305 रुपए पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे कम होकर 286.80 रुपए की सतह पर बंद। स्टॉक मार्केट में मंदी, 456 पॉइंट्स की कमी पर कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स 41,686 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। आइंदा माली साल बजट पर शहरियों ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। कुछ ने बजट को खतरनाक करार दिया, कुछ को रिलीफ मिलने की तवक्को है। अवाम ने बजट पर मज़ीद क्या कहा, आइए आप भी देखिए।
गवर्नमेंट जो बजट निकाल रही है, इसको घी, आटा, चीनी वगैरह जो सी चीज़ें हैं, दालें वगैरह हैं, इसको कम करना चाहिए। इस हुकूमत से उम्मीद है कि ये पहले वाली हुकूमतों की तरह महंगाई ज़्यादा नहीं करेंगे। बजट ऐसा ही होना चाहिए सर, आम जो लोग हैं गरीब से गरीब, उनको अच्छा से अच्छा मतलब रिलीफ मिलना चाहिए। चाहते हैं डिस्काउंट और उनमें चीज़ों में कमी से कमी आए, हर इंसान अपना ज़िंदगी अच्छी बसर करे। भाई बेहतरी तो तब आएगी जब हम सुनेंगे, कुछ हमें रिलीफ मिलेगा उसमें। तो अभी तो हमारा कोई मसला पता ही नहीं। बजट बहुत खतरनाक आने वाला है और हालात भी बहुत ख़राब होने वाले हैं। लग तो ऐसे ही रहा है, इतने सालों में आज तक अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला, तो कल क्या उम्मीद है? हमारे लिए तो सारे दिन एक से ही है। मुझे तो नहीं लग रहा है कुछ भी नहीं होगा भाई। बाग आज़ाद कश्मीर ज़िमनी इंतखाबात के नताइज रोक दिए गए हैं। आरओ ऑफिस के मुताबिक तमाम पोलिंग स्टेशनों के नताइज मौसूल होने पर मुकम्मल हतमी नतीजा जारी किया जाएगा। ज़िमनी इलेक्शन बाग आज़ाद कश्मीर में 142 पोलिंग स्टेशनों के गैर हतमी नताइज मौसूल हुए। गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर 15,504 वोट लेकर पहले नंबर पर, जबकि नून लीग के मुश्ताक मिनाज 14,782 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। मुआविन खसूसी बराह एहतसाब इरफान कादिर कहते हैं कि जजेस के मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे। नैब भी इस मामले को देख सकता है। इंसाफ सबके लिए और एहतसाब सबका होना चाहिए। कानून के सामने कोई मुकद्दस गाय नहीं। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये एक ऐसी तरफ मुल्क को ले जाया जा रहा है जिससे कि हम चंद मखसूस जजेस जो हैं वो न सिर्फ के सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसलों के ख़िलाफ़ एक पेशरफ्त कर रहे हैं, बल्कि वो पार्लिमान के कानून को भी नहीं मान रहे और उन्होंने आइन और तमाम स्टैचूट्स के ख़िलाफ़ फ़ैसले दे के इलेक्शन में भी कोशिश की है कि वो अपनी मर्ज़ी से इलेक्शन करा लें। और वो सारी चीज़ें जो हैं उसके बारे में न सिर्फ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम सब के, बल्कि वो कानूनी, आइनी और मंतकी एतबार से भी गलत हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात मुल्क के लोगों के लिए कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मुल्क की मईशत को कहां लाकर खड़ा कर दिया। 10 जून को सिंध का बजट पेश किया जाएगा। वो सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पीपुल्स पार्टी अपने नंबर्स पूरे भी करेगी और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हर हाल में जो है वो मेयर पीपुल्स पार्टी के ही होंगे। बाकी पार्टियों के पास अक्सरियत नहीं है। अमेरिका में कैपिटल हिल में अटैक करने वालों को 18 साल कैद हो सकती है। तो हमारे मुल्क में जिन्होंने आपकी एम्बुलेंसेस तोड़ी, जिन्होंने आपकी बसेस को आग लगाया, जिन्होंने लोगों की मोटरसाइकिलें तोड़ी, जिन्होंने आपके मुल्क में GHQ पे हमले करने की कोशिश की, रेडियो पाकिस्तान हो गया, PTV पे पहले हमला किया, पार्लियामेंट पे पहले हमला किया, सब कुछ जिसने की, तो क्या उसको छोड़ दिया जाए? कहा कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। इसके साथ ही स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।